Rule This number 2, conference will now be recorded. please ask queries in the chat box only. Okay, both of us would be available to answer queries. It's a 1-hour session where we'll be talking about how to attempt an MCAT and how to analyze an MCAT. There are 2 parts. So please, rule number 1, keep yourself in muted form and please ask queries only in the chat box. So chat box is visible to you also? Yes. Oh, great. Sir, screen is visible? Yes, screen is visible. You are visible. I am visible or not, that is not very important. And it will only create disturbance in their life. Sir, we should also ask at the starting कि कितने लोगों ने इनमें से MCAT दिया है? Okay, ठीक है. So they are in muted form. They are good students. So they are following the rules. They have to be. They have to be. Otherwise, you'll throw them out. हाँ, अच्छा भैया सुनो, तुम लोग सब लिख दो किस किसने MCAT दिया है. Appeared A और नहीं दिया not appeared NA. Appeared A, not appeared NA. वैसे भी ये उस MCAT का एनालिसिस नहीं है. देखो इसका नाम क्या है, How to attempt and analyze MCAT. ठीक है, write down. Okay, so many have appeared. अब इनको पता पड़ेगा इन्होंने क्या गलती करी. हाँ, तो only one student is there who is not attempted. Very good. Else everybody has done. Again, one more thing that I would like to explain them. Please understand, this is how to attempt an MCAT analysis MCAT. This session we conduct once in your entire preparation period. Rest of the sessions are MCAT analysis sessions. So rest of the sessions are specific to a particular MCAT and then how to analyze that particular MCAT. यानी उसके क्वेश्चंस करना, उसके पैसेजेस सेलेक्ट करना, सेट सेलेक्ट करना, एक्सेट्रा. ये वाला सेशन एक ही होता है बैच में, एक बार ही होता है, जिसपे हम बताते हैं आपको टेस्ट कैसे देना चाहिए आगे के, और जो टेस्ट देके आते हो पोस्ट टेस्ट लर्निंग कैसे लेनी है. ओके, सो यूजुअली क्लासरूम्स में भी हम दोनों जने ही वो सेशन लेते हैं. हाफ पार्ट आई यूजुअली टेक एंड हाफ पार्ट सुमित सर यूजुअली टेक. सो दिस इज हाउ वी डिवाइड. सो आई होप they are joining. I think they've joined now. We can start. Yes, sir. Good morning, guys. My name is Kapil, you know, and Sumit sir is with me. He is visible. I am visible. We are actually visible, but we are here visible on screen. So don't feel that we are, otherwise also we are not visible. So we are not like Corona non-visible है ना? तो अब बात करते हैं अपन इसकी कि हम MCAT एनालिसिस इस सेशन में करना क्या चाहते हैं. देखो, हम चाहते हैं इस सेशन में आपको ये पता पड़ जाए कि आपको टेस्ट में अपीयर कैसे होना है. हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट अ पर्टिकुलर MCAT, पहला. दूसरा, once you have taken a test, what should be your approach to analyze the test so that in the next test you can improve and we can see your cumulative growth. See, our purpose as a trainer or as an institute is that we feel we would like to have that feeling कि हमारा बच्चा cumulatively grow कर रहा है. So वो cumulative growth चाहिए होती है. ठीक है, on all these fronts, on all these aspects, let's start with this session. And this is primarily for a batch who has just started, or a batch probably who has not appeared for many MCATs. After this you will start taking MCATs very regularly, और जिन्होंने अभी दे भी दिया होगा उनको समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती रही अटेम्प्ट में. Okay, so let's start. I am starting with section 1. VARC is usually section 1, and this is one section where typically students face a lot of difficulties in terms of attempting a test. तो सबसे पहली दिक्कत तो attempting से हो जाती है start. Attempting से कैसे होती है? Attempting से ऐसे होती है that you guys, you do not know how to attempt VA or RC.
तो आप क्या करते हो, जैसे पेपर मिलता है तो 1 से लेकर 34 तक लगातार चल देना है हमको। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमको लगातार चल देना है। बहुत बार ऐसा होता है दैट हम जब 1 से स्टार्ट करते हैं, ये मैं VRC की बात नहीं कर रहा, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैथ्स है, मैं सर मैथ्स में इंटरव्यू कर रहा हूँ, सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया बाउंसर, क्वेश्चन नंबर 2 किया बाउंसर, क्वेश्चन नंबर 3 किया बाउंसर, तो मुझे क्या लगता है कि अरे यार तो सब कुछ ही बाउंसर है, अपन तो बर्बाद हो गए। बट ऐसा नहीं होता, उस वक्त ये फीलिंग नहीं लानी है। इमीडिएटली आपको पिच चेंज करना है एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेट अस से 34, 35, 34, 33, 32, और वहां पे भी बाउंसर्स मिलने चालू हो जाए तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट इन द सेंटर। तो सेंटर क्या होगा, 17, 17, 16, 15, 17, 18, 19, और अगर ये दोनों भी बाउंसर मिल गए तो सुमित सर फिर आपने ढंग से पढ़ाया नहीं, सारे रास्ते बाउंसर मिल रहे हैं। तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम ऊपर वाले को याद करेंगे, बिकॉज वो बहुत हेल्प करता है उस वक्त, वहां भगवान ऐसा एहसास होता है कि भगवान है। ठीक है, चलो जोक सपाट आ जाओ इस पे। VARC, there are two approaches to handle VARC. There are two approaches. The first approach says that आपको सेक्शन 1 के 2 सबसेक्शन है, वन इज PA VA, सेकंड इज RC। ओके, आप VA से स्टार्ट कर लो एंड स्पेंड 15 मिनट्स ऑन VA। आप स्कैनिंग सिर्फ पैसेजेस की करो, 5 मिनट्स स्कैनिंग ऑल पैसेजेस एंड देन 40 मिनट्स अटेम्प्टिंग अ पैसेज। ये इनिशियल डेज में है, इन इनिशियल डेज। धीरे धीरे 5 मिनट और कम होते चले जाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। You will find that you will be spending only 2 to 3 minutes on scanning, and rest of the time you will be spending on attempting passages. Okay, so that is strategy 1, where you typically spend time on VA first and then RC second. This is first school of thought. I believe on this school of thought because मेरा मानना है, मैं दो चीजें बहुत मानता हूं फर्मली, कि इसमें मेरे को नॉन नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस का पैटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी सेट हो चुका है। तो जब ग्लांस करता हूं तो देखता हूं वही पैराफॉर्मिंग है, वही आउट ऑफ कंटेक्स्ट है एंड सेम समरी बेस्ड क्वेश्चन। सो आई नो दैट आई विल बी गेटिंग दीस 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस if the pattern is exactly on the same lines as we are getting in past 3-4 years, like 19, 18, 17, 16, 15. okay, तो अगर वो है तो मुझे बहुत हद तक ये क्लैरिटी है what I will be getting, and the best part is that I am spending 15 minutes on those questions where I'll not get a negative, मुझे नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो मेरा नुकसान नहीं हो सकता यार गलत होने में। इसीलिए काफी बेनिफिशियल है अगर मैं VA से स्टार्ट करता हूं। फिर मैं RC पे चला गया तो मैं पूरा टाइम RC को स्पेंड कर सकता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले RC करूंगा फिर VA करूंगा फिर वापस RC पे आऊंगा। वापस RC पे आने का कोई खास फायदा नहीं होगा। अगर फर्स्ट स्ट्रेटेजी की तरह चलते हो, दैट इज फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, तो आप पहले VA करोगे फिर आप RC करोगे। In case you get some time, if time permits, then you can jump between VA and RC. It's your choice. 1 to 34, you have a set of 34 questions. Harshit is asking, can we jump between? You can jump between subsections, but not between sections. Okay, so if you feel कि RC में time बचा, then you can spend some time on VA. VA questions are shorter, paras are there, while passages are there in RC. So it would be very, very difficult for you to typically, no, quant and VARC you cannot jump. VARC means it is 60 minutes VARC only. That's why 2 faculty members are sitting. Otherwise we could have jumped. Anyways, jokes apart, तो पहले बाद में कुछ टाइम बचता है तो I can bring back that time to VA, and there is hope to attempt one summary based question. At least some ray of hope is there. But if I attempt RC first, then go to VA, and I have some time at the end, it would be very, very difficult for me to come back to RC, because ray of hope in attempting RC would be very less. Number 1. Number 2, second school of thought, कुछ लोगों को लगता भी है, some of the students they come to me and they say, sir मेरे को तो RC पहले करने में फायदा होता है. Do that. जिसमें आपको फायदा होता है, मेरा फायदा उसमें है। तो आप अगर बोलते हो मुझे, सर मैंने स्ट्रेटेजी 1 ट्राई किया कुछ एमकेट में, मेरे को जमा नहीं, स्ट्रेटेजी 2 ट्राई किया कुछ एमकेट में, मुझको जम गया, देन फॉलो दैट। सी आई एम नॉट, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल, हम बोलेंगे यही फॉलो करना है। वी वुड से 1 2 3 4, देयर आर 2 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, एक्सपेरिमेंट विद देम एंड देन व्हिचएवर सूट्स यू बेस्ट अडॉप्ट दैट। क्योंकि यहाँ
मैं टेस्ट नहीं दे रहा, तुम टेस्ट दे रहे हो, तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि तुम जब टेस्ट दे रहे हो तो तुम उसमें क्या कर रहे हो। तो बहुत सारे बच्चों से मिलोगे, जैसे मैं अभी तुम्हारा एक इंटरेक्शन कराया था निशान से, ही सेड आई अडॉप्टेड 1, ओके, आई अडॉप्टेड स्ट्रैटेजी 1। उससे पहले जिससे कराया था ही सेड आई अडॉप्टेड स्ट्रैटेजी 2। तो दोनों से कराया, दोनों की अलग अलग बात थी। तो ये डिपेंड करता है यार हम किस बच्चे को क्या सूट करता है, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब आरसी वाले में बच्चे को लगता है, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ आती है, इसमें मिस्टेक आती है when we start attempting passages right in the beginning, तो what he'll do, स्कैनिंग कर लिया, ऑर्डर ड्रॉ कर लिया, ये मैं आपको भी सिखा दूंगा, I'll explain you, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना चालू किया, he will start overspending। वो जो ओवरस्पेंडिंग आप मैथ्स में करते हो वो आप इधर भी करते हो, तो he will start overspending time on a passage, और फिर वो पैसेज से इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएगा, अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, I have seen this, I can do that, all these thoughts will come which are actually suicidal thoughts because now he is moving as per the trap of the paper। पेपर चाहता था इस गड्ढे में गिर जाए और वो उस गड्ढे में गिर गया। पैसेज डिमांड कर रहा है मोर टाइम, ही इज गेटिंग मोर इन्वॉल्व, इमोशनली इन्वॉल्व। किसने कहा भाई, क्वेश्चन तो कोई सा भी अटेम्प्ट करोगे, डिफिकल्ट पैसेज का करोगे तो भी समान नंबर मिलेगा, दूसरे का करोगे तो भी उतना ही नंबर मिलेगा, देयर इज नो डिफरेंशियल मार्किंग। सो व्हाई आई हैव टू अटेम्प्ट अ डिफिकल्ट पैसेज, द होल लॉजिक इज दैट difficult passage will go at the end, easy passages would come in the beginning। now your question is sir, easy passage में बल्ब तो जलता नहीं, यही पूछोगे ना, how would I identify? okay, now what is this scanning, 5-minute scanning, can anybody write quickly what is this scanning? come on guys, what is this scanning, can you quickly write this? I want your answers, what do you mean by this scanning? क्या बकवास कर रहा हूं मैं? come on, okay, reading the first and last para, good, identifying familiar or easy passages, very good, taking the blueprint of whole paper, very good, based on topic length familiarity, very good, choosing which topics are of my interest, okay। स्कैनिंग थॉरो रीडिंग नहीं होती है, स्कैनिंग तो बिल्कुल सुपरफिशियल रीडिंग होती है, फर्स्ट 2-3 लाइंस निकाला, लास्ट 2-3 लाइंस निकाला, क्वेश्चंस को स्कैन किया, ओके, ये स्कैनिंग होती है। ओके, गुड आंसर्स आर कमिंग, गुड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू, ये समझ में आ गया होगा, दो स्ट्रेटेजी है, दो स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं, आगे चलते हैं। लुक एट दिस, व्हाई स्कैनिंग, दिस 5-minute स्कैनिंग will help you to identify order of attempt, तो order of attempt कैसे identify होगा, area of interest, that is important, actually area of interest, second point is length of the passage, which is not very relevant in CAT because all passages are of same length then type of questions, okay, then type of questions, so here area of interest, type of questions, type of passage, ये relatively important है, लेकिन आपके लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत निकालने का कोशिश करेगा, अगर टाइप ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है और एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बिल्कुल बाउंसर्स है तो शायद पीछे हो जाएगा। दिस इज हाउ यू डू और यू आइडेंटिफाई अ गुड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, ओके। सो दिस इज टिपिकली आइडेंटिफाइंग ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट इन फर्स्ट 2-3 मिनट्स। तो 4 फैक्टर्स काम में लेंगे हम। फर्स्ट फैक्टर क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ पैसेज, थर्ड फैक्टर क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फोर्थ फैक्टर क्या है, टाइप ऑफ पैसेज। टाइप ऑफ क्वेश्चंस मींस, ओके ग्रेट, अभी आगे जाएंगे ना, जब हम आगे की क्लासेस पढ़ेंगे आरसी 1, 2, 3, आरसी 3 में आएगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो हर स्टूडेंट के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जिनमें उसको बहुत मजा आता है और कुछ क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जो वो हमेशा गलत करता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो एमकेएस दे देता है तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन टाइप्स helps him to identify a passage whether he has to attempt that passage or not. For example, question types क्या क्या होते हैं, conclusion based question, central idea based question, inference based question, critical reasoning based question, grammar based question. These are various type of questions. So in all there are 10 to 11 type of questions that we discuss in class.
और घूम फिर के क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। आपको आइडिया लगना चालू हो जाता है उससे कि ओके दिस इज व्हाट आर वेरियस क्वेश्चन टाइप्स एंड बेस्ड ऑन देम आई हैव टू relate my passages and then I have to eliminate them in my order. So let us say 1 2 3 4 5 जैसे आप लोगों ने अभी टेस्ट दिया तो बहुत सारे लोगों ने पैसेज नंबर 1 2 3 अटेम्प्ट कर दिया होगा, 4 5 छोड़ दिया होगा, irrespective of even knowing the difficulty level of 4 and 5. क्या पता फिफ्थ बहुत इजी होता. Usually what they do, 1 very difficult, 2 difficult, 3 medium, 4th easy, 5th very easy. I'm giving you an example. Now in that case you will move in a reverse order. Questions को एक बार स्कैन करना होता है रविंद्र. We have to read questions of the passage or not before attempting. Before attempting you will have to scan all questions to identify type of questions. After that you will have to do these questions after reading only. Okay, तो एक बार स्कैनिंग के बाद में ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को पता है कौन से टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, दिस इज हाउ व्हाट यू से हाउ टू अटेम्प्ट VARC. ठीक है, यहाँ पे एक बात खत्म होती है. अब पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में बाद में आते हैं. अटेम्प्टिंग क्वांट, सर ओवर टू यू. So when we talk about quant, people have different kind of feelings related to it, right? आप में से बहुत सारे लोगों की quant बहुत अच्छी होगी. अच्छा, आप में से how many of you feel that your quant is maybe a weaker or a below average kind of section for you? How many of you feels the same? जल्दी से बताइए. You have to type whether you feel that quant is tougher for you as a section. It is tougher for you or not. कितने लोगों को लगता है आप में से? ये तो सबको टफ लग रही है सर. सर कितने रिस्पॉन्स आए हैं आपके पास? क्योंकि मेरे पास कम आए हैं बहुत. नहीं मेरे पास तो काफी आए हैं. अच्छा, ठीक है, तो स्लो अपलोड हो रहा है मेरे पास. ठीक है, आप आ रहे हैं काफी. बहुत आए सर. जैसे मैं नाम ले सकता हूँ अगर आप चाहें तो. उत्कर्ष, मोहित, हाँ नहीं ठीक है, दिव्यांशु, गुंजन, अमन, many of them. राधिका, गुंजन, दिव्यांशु, अमन, तन्वी, अमृता, मनमोहन, राशिका, बिल्कुल एकता. ठीक है, बहुत सारे हैं सर. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. हर्षित ने बोला सर इट्स इजी. हाँ, हर्षित बंसल सेज इट्स इजी. हाँ, एक्चुअली इट्स वेरी इजी एंड हर्षित वेरी गुड. आप यू हैव रियलाइज्ड दिस, राइट? मैं भी इस सेशन में यही बताने की जरूरत है कि क्वेश्चंस में भी बहुत टफ हो सकते हैं, बट हमें सारे टफ क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, हमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट? बिकॉज दिस इज बेसिकली अ पेपर ऑफ सिलेक्शन, लाइक रिजेक्शन नॉट सिलेक्शन बेसिकली, राइट? तो आपको अगर ये पता चल जाए कौन से क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस. नाउ द रॉन्ग अप्रोच, जिसमें कि आप में से काफी लोग बिलीव करते होंगे, राइट, कि कहाँ से क्वेश्चंस लाइक, अच्छा आप में से बहुत सारे लोग 1 by 1 क्वेश्चंस करते होंगे, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बिकॉज हमने बचपन से यही सीखा है. हमने 10th में भी यही सीखा था, हमने 12th में भी यही सीखा, हम ग्रेजुएशन में भी यही करते हैं कि हमने नॉर्मली ये सीखा है कि पहला क्वेश्चन उठाओ, करो, आ जाए ठीक है, छोड़ के आगे चले जाओ, और ये अप्रोच से आगे बढ़ते चले जाते हैं. तो लॉजिकली अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता है ऑन एन एवरेज, मतलब ठीक है कोई क्वेश्चन कंपैरेटिवली शायद आधे मिनट में हो जाता होगा, कोई शायद ज्यादा टाइम लगता होगा, बट ऑन एन एवरेज कैन यू टेल मी दैट हाउ मेनी मिनट्स फॉर अ क्वेश्चन नॉर्मली वी हैव फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन? आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांट. ठीक है, फेयर इनफ, 2 minutes नॉट बैड. ठीक है ना, 4-5 मिनट तो थोड़ा ज्यादा हो गया, बट हाँ मैं मानता हूँ 2 मिनट से कम नहीं ऑन एन एवरेज की अगर आप बात करोगे. और आपको पता है 34 क्वेश्चंस आते हैं, तो 1 by 1 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं, और आप सोचिए 34 into 2 68, और सेक्शन इज ऑफ 60 minutes ऑब्वियसली, सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एनी हाउ. ठीक है ना, तो ये तो पॉसिबल होता ही नहीं है. तो क्वेश्चंस क्यों दिए जाते हैं 34? उन 34 में से 8, 10, 12 क्वेश्चंस तो बिल्कुल टफ काइंड ऑफ दिए जाते हैं, जो कि अगर आपने सिलेक्ट कर लिए तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा, राइट? तो अब आप लॉजिकली अगर सोचे कि आप चूंकि सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, तो एक ही काम बचता है, आपको सिलेक्ट करना होगा कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं और कौन से बाद में करने हैं, राइट? नाउ क्वेश्चंस को देख के 3 टाइप की बेसिक फीलिंग्स आती है. ठीक है, जो बातें हम लोग आज कर रहे हैं, अभी कपिल सर ने बताया था कि ये नॉर्मली हम लोग बार बार जो अब आगे से एमकैट एनालिसिस सेशन होगा उसमें हम लोग डिटेल वर्जन में नहीं कर पाएंगे शायद, तो आपको मैं अच्छे से याद दिला दूं, आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि क्वेश्चंस 3 टाइप की फील आती है. द मोमेंट यू सी ए क्वांट क्वेश्चन, सी व्हाई वी आर टॉकिंग मोर ऑन क्वांट, बिकॉज़ क्वांट सेट्स द मूड ऑफ द प्रिपरेशन, राइट? आप क्वांट से बहुत ज्यादा रिलेट करते हो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, गड़बड़ चल रही है,
ठीक है ना। उसके बाद शायद आप DILR से डरते हो, देन DILR VRC की आप बात करते हो, बट हाँ क्वांट सेट्स द मूड ऑफ द प्रिपरेशन। आप बहुत सारा सोचते हो क्वांट के बारे में, मटेरियल भी बहुत सारा दिखता है, आप उससे डरते भी हो, आप उसको सॉल्व भी करते हो, तो क्वांट थोड़ा इन्वॉल्व काइंड ऑफ चैप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। आप क्वांट को आज सॉल्व करोगे, हो सकता है कल के दिन एमकैट में क्वेश्चन आएगा और आप कल को सॉल्व भी कर पाओगे। इंग्लिश में वो फीलिंग बहुत स्लो आती है, और वही DILR में भी आपको फीलिंग पता नहीं कितने दिनों बाद आती है कि यार जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे से वो क्वेश्चंस हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो क्वांट इन दैट केस आपको बहुत प्रोडक्टिव लगता है या फिर अनप्रोडक्टिव लगता है अगर आपसे नहीं हो रहा होता है, राइट। तो दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग लाइक दिस अबाउट क्वांट। नाउ जब क्वेश्चन को देखें तो तीन टाइप के कौन से बेसिक अप्रोचेस हैं। वन, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, मैं तो गारंटीड इसको कर लूंगा। दूसरे टाइप की फीलिंग होती है क्वेश्चन इज एवरेज काइंड ऑफ, यार मेरा पढ़ा हुआ सा लग रहा है, मैं कर सकता हूँ, राइट। एंड तीसरे टाइप की वैरायटी होती है क्वेश्चन इज वेरी टफ, ये तो मेरे से किसी हालत में नहीं होगा। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी वैरायटी होती है जो वेरी इजी कैटेगरी होती है। द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन एंड देन यू फील कि हाँ मेरे से हो ही जाएगा, राइट। और वो क्वेश्चन को देख के फील आता है। मैं अभी आपको कुछ स्कैनिंग पार्ट दिखाता भी हूँ, किस तरीके से यू कैन टेक अ फील की क्वेश्चन आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो फील कैसे आते हैं, राइट। एंड देन एवरेज काइंड ऑफ क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं, वो टाइम स्पॉइलर होते हैं। सबसे गड़बड़ फिर जो लास्ट वाले, ऑब्वियसली द मोमेंट यू सी अ क्वेश्चन आपको फील आ जाता है कि यार क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, वो भी ठीक है। बट जो सबसे गड़बड़ वैरायटी होती है वो कौन सी होती है कि ये वाला क्वेश्चन जो मैंने देखा ये तो मैं कर ही लूंगा किसी भी हालत में, राइट। और वही पूरा का पूरा पेपर बिगाड़ता है। आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने जब एमकैट लिखा भी है, मोस्ट ऑफ यू एक्चुअली रिटन द लास्ट एमकैट, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बेसिक आइडिया हुआ होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन पे आप स्टक हो गए होगे। तो मैंने इसलिए लिखा भी है यहाँ पे, जस्ट प्लेइंग लाइक जस्ट यू फील दैट इट इज अ 2020 मैच। आप जब कोई मैच देख रहे होते हो या आप कुछ कोई गेम आप परस्यू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर 1 घंटे का सेक्शन है और शुरू के 20 मिनट में, सी मैंने ये भी लिखा है कि स्कैनिंग जो है वो 17 क्वेश्चंस के पैचेस में करनी चाहिए। पहले पॉइंट 17 क्वेश्चंस पे, जैसे नॉर्मली मैं अगर अपने बारे में बताऊं, द मोमेंट आई स्टार्ट एन एमकैट और मैं एक क्वेश्चन पेपर आइकन होता है ऊपर, क्वेश्चन पेपर लिखा होता है, उस पर क्लिक करो तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार में स्कैन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उसमें आई थिंक ऑप्शंस आपके सामने नहीं आते, बट यस यू कैन सी ऑल द क्वेश्चंस इन अ रो, ठीक है ना, आप देखते चले जाते हो। तो व्हाट नॉर्मली आई डू रादर देन आई मार्क, क्योंकि मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन उस केस में हट जाता है कि मार्क फॉर रिव्यू आप कर लो, तो आप बस एक पेन हाथ में रखो, मे बी लेफ्ट हैंड में रख लो या राइट हैंड में लग रहा हो, स्क्रॉल करते जा रहे हो और देखते जा रहे हो कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आता है। तो सपोज आउट ऑफ दोस 15-17 क्वेश्चन जो पहली बार में आप एनालाइज कर रहे हो, फीलिंग कैसे लेनी है क्वेश्चंस की वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। आप उनको नोट डाउन कर लो, 7th कर लूंगा, 10th कर लूंगा, 9th कर लूंगा, ठीक है ना। और मान लीजिए कि एक एग्जाम में आपने 17 में से सिर्फ 8 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस ही आपको लगते हैं बहुत इजी है, तो डोंट गेट पैनिक, बिकॉज 5 and 5 10 क्वेश्चन इज नॉट बैड एट ऑल, राइट। स्टिल यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 80% अगर आपने लगभग 10 क्वेश्चन सही कर लिए। ये धीरे धीरे हम जितने ज्यादा टेस्ट देते हैं उससे हमें कुछ समझ में भी आता है, राइट। Why I'm saying it is a 2020 match because its starting is very important. अगर शुरू के 20 मिनट में, जैसे नॉर्मली what I particularly do, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं अप्रोच लेता हूँ, ज्यादातर जो टॉप स्कोरर्स हैं वो शुरू के 20 मिनट में दे ट्राई एंड अटेम्प्ट द इजीएस्ट क्वेश्चन, मतलब जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो शुरू के 20-25-30 मिनट में खत्म हो जाने चाहिए। एंड व्हाई आई पर्सनली से कि शुरू के 20 मिनट में वो क्वेश्चंस स्कैन भी हो जाए, आपको पता भी लग जाए। आप ऐसे आई एम वेरी श्योर ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत सारे लोग लास्ट तक पहुंचे नहीं होंगे। क्या आप में से जिन्होंने भी एम कैट दिया था, आप में से कोई ऐसा है जो लास्ट पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाया था, 34th क्वेश्चन पे नहीं पहुंच पाया था, या लास्ट के 5 रह गए थे या 6 रह गए थे? आंसर इन यस और नो, और मे बी मी यस। हाँ, सो आई थिंक हाँ काफी लोग हैं, है ना। बहुत देखो, मैं अभी क्योंकि टाइम हम लोगों ने लिमिटेड लिया है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आई कैन गिव यू एम्पल नंबर ऑफ केस स्टडीज। और ये सबसे ज्यादा दिक्कत उनकी होती है जिनको मैथ्स ज्यादा आती है, ठीक है ना। आई कैन गिव यू 2 वेरी सिंपल एग्जांपल्स, ठीक है। जल्दी से बताता हूँ शॉर्ट में। हाँ, मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन का ये यूज होता है कि आप एक बार मार्क कर लो तो कलर चेंज हो जाता है और आप जाकर एक बार में मार्क फॉर रिव्यू के सारे क्वेश्चंस को एक बार में स्कैन कर सकते हो अगर आप वहां पे क्लिक करते हो, राइट। तो पहले तो आप मार्क कर लोगे उसको, एंड देन मार्क फॉर रिव्यू वाले जितने भी क्वेश्चंस आपने किए होंगे वो एक बार में सारे स्कैन हो जाएंगे। तो 9th के बाद आपको 12th पे ऑटोमेटिकली पहुंचा देगा सिस्टम, ये फिर वहां पे यूज हो जाता है। नाउ एक केस स्टडी है, आप मुझे बताइएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंप्रूव तरीका है ऑफ अटेम्प्टिंग द एम कैट, राइट। तो 2 दोस्त हैं, एक दोस्त है जो कि बचपन से टॉपर रहा है, 10th में भी टॉपर था, 12th में भी टॉपर था। उसने अचानक से कैट की तैयारी चालू करी और उसने 1 by 1 क्वेश्चंस किया। और कैट का सेटअप या एम कैट का सेटअप ऐसा आ गया कि शुरू के 10 क्वेश्चंस आर वेरी टफ, दे आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आर वेरी इजी, एंड देन द रिमेनिंग से आधे सरल है और आधे कठिन काइंड ऑफ है, राइट। अभी जो टॉपर है ना, ये इसका अप्रोच जब पहले 10 क्वेश्चंस पे लगा लेगा ना, क्योंकि पहला क्वेश्चन भी होगा नहीं,
सेकंड भी होगा नहीं, भले ही ये टॉपर था पर क्वेश्चन आई इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है, लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम में होने नहीं है, तो ये क्वेश्चंस वो कर नहीं पाएगा किसी भी हालत में, राइट? तो शुरू के 10 क्वेश्चन में आप लोग बता सकते हैं कितना टाइम लग जाएगा उसको? एनी हाउ, एक टॉपर भी है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट, उससे नहीं भी हो रहे हैं, उसका दिमाग तो खराब हो चुका होगा एक दो क्वेश्चंस करने के बाद, आप बता सकते हैं कितना टाइम लग जाएगा अराउंड 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में? एनीवन? 35-40 मिनट्स, चलो ज्यादा बता दिया आपने, बीच में फ्लो बन जाएगा। आई कैन से कि उसको कम से कम 20-25 मिनट तो गारंटीड लग जाएंगे, इट इज फॉर श्योर, राइट? और उसके बाद वो 11वें क्वेश्चन में आएगा, 11 से 20 तक बहुत नाइसली कर लेगा, हालांकि उसका डीमोटिवेशन पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका होगा, एंड देन 20 से 30-34 तक पहुंचते 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 उसका टाइम भी खत्म हो जाएगा और उसने लगभग ठीक ठाक क्वेश्चंस भी किए होंगे। अब ये दूसरा अप्रोच है क्वेश्चंस करने का, राइट? पहला क्वेश्चन देखा, मेरे से नहीं हुआ, ये दूसरे टाइप का बच्चा है जो मीडियोकर रहा है, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, अमेजिंग, जितना फैकल्टीज ने बताया, टाइम में आया था, जयपुर में आया था, एडमिशन ले लिया, इसे फिर जो समझाया गया इसने वो बात समझ ली, अब ये गया, इसने पहले 10 क्वेश्चन देखे, इसको कोई बुराई फील नहीं हुआ, क्यों? इसने हमेशा से ही जीवन में देखा है, इसे पहला नहीं आ रहा था, दूसरा नहीं आ रहा था, तीसरा नहीं आ रहा था, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, अब ये 11वें क्वेश्चन पे आएगा, तो आप बता सकते हैं इसको कितना टाइम लगेगा 11th क्वेश्चन पे पहुंचने में? I will answer all these kind of queries, logs and function kind of at the end of the session. ठीक है ना बेटा, आप थोड़ा बाद में पूछेगा, बिल्कुल सही है, not more than 5 or 6 मिनट। I'll tell you कैसे स्कैनिंग करी जाती है, कैसे वो टाइम डिवोट किया जा सकता है, राइट? 5-6 मिनट के बाद ये तो बंदा, ये जो एवरेज था, ये टफ पेपर के चक्कर में तो फंसेगा नहीं, और 11वें क्वेश्चन पे कंपैरेटिवली 15-20 मिनट पहले आ जाएगा उस टॉपर से। वो टॉपर जो पूरे साल तो पढ़ता रहा, उसकी अमेजिंग थी। अच्छा, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, एंड कपिल सर आई थिंक यू आल्सो अग्री, कि जिसको ज्यादा आता है उसको बताना थोड़ा मुश्किल होता है ना, उसको सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब अगर आपके वही है ना कि घड़ा ज्यादा भरा हुआ है तो पानी भरना इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, राइट? तो आप में से सबसे ज्यादा दिक्कत वही लोग करेंगे, क्योंकि उनको ये बात अभी नहीं समझ पाएगी, व्हेन दे गेट स्टक इन अ पर्टिकुलर एम कैट, तब देन ओनली दे कैन रियलाइज कि हाँ ऐसा होता है। तो पेपर का सेटअप जब ऐसा आ जाए कि शुरू के 10 क्वेश्चन में से 3 ही हो पा रहे हैं या 2 ही हो पा रहे हैं, फील गुड अबाउट इट। क्यों? क्योंकि पेपर टफ है तो सबके लिए टफ आया होगा, और अगर एक बच्चा अच्छा है तो वही अच्छा रहेगा। सिलेक्शन में हम ही लोगों का होता है, और बच्चे तो आईएम्स बुलाएगा नहीं, ऑब्वियसली जो हम में से टॉपर है वो स्टिल ही बी टॉपर, अगर वो थोड़ा दिमाग से, थोड़ा समझ से आगे बढ़ता जाएगा। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये वाला जो बंदा है ना, सेकंड जो मीडियोकर है, ये पूरा का पूरा सेक्शन ही कैन ऑब्वियसली अटेम्प्ट इन अ फेज ऑफ से अराउंड 15-20-25 मिनट्स में तो इजी क्वेश्चन निपटा लेगा। यस कपिल सर। Sir, this is related to, very much related to one of our example which we had Yes, last sir. year in CAT 18 also and CAT 19 also. एक बच्चा Yes. था CAT 18 में, उसको क्या बहुत कम समझ में आता था, और उसको लगता था यार ये जो सब बातें बोल रहे हैं बकवास कर रहे हैं, और बिल्कुल। मेरे को तो उसने स्ट्रेट बोल दिया था, सर आपकी अप्रोच तो टाइम की अप्रोच है, और आपकी वो अप्रोच है जो आंसर आप निकाल देते हो ये आंसर है, और आपकी अप्रोच जो क्वेश्चन ऑप्शंस हैं वो तो बिल्कुल ही गलत होते हैं, देयर इज अ डिफरेंट लॉजिक, और उसने बहुत मात खाई। सेकेंड ईयर में धीरे धीरे अप्रोचेस समझ में आने लग गई, सेकेंड ईयर में आके वो मान गया कि नहीं अप्रोच है जिससे आंसर आता है, एंड दिस गाय मेड इट टू IIM अहमदाबाद इन हिज सेकंड अटेम्प्ट, इन फर्स्ट अटेम्प्ट ही कुड नॉट। मैं समझ सकता हूं। प्लीज आप लोगों को सबको है ये चीज, आप लोग समझो, हर क्वेश्चन की तीनों सेक्शंस में एक अप्रोच होती है। सर ने आपको मैथ्स का एग्जांपल दिया, मैं भी आपको आरसी का एग्जांपल है, आप पैसेज नंबर 1 से स्टार्ट करके पैसेज नंबर 5 पे जाओगे, लास्ट के 2 पैसेज आप छूओगे भी नहीं, फर्स्ट 2 3 करके आ जाओगे, घर आके देखोगे अरे यार 4th और 5th तो बहुत इजी थे। तो किसने कहा था 1 2 3 4 5 करने को? क्या एग्जामिनर बोला था क्या 1 2 3 4 5 करके आना है? एग्जामिनर ने बोला था ये 5 पैसेज में से कोई क्वेश्चन करके दे दे भाई जो तेरे को आते हो। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी बोथ आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि सिलेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। प्लीज सर। एग्जैक्टली। सो लेट्स मूव फर्दर। और ये जो स्कैनिंग है 2 मिनट से कम में हो जानी चाहिए, पर 17 क्वेश्चन 2 मिनट में कम से कैसे होते हैं वो भी अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। नाउ फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली आप देखिए, डोंट ट्राई टू बी अ रॉबिन हुड इन द पेपर की यार आप जाओगे, आपकी मैथ्स अच्छी थी, अभी मैं इनफैक्ट अभी पिछले 1-2 दिन में मेरे पास कुछ क्वेरीज भी आई हैं अलग से, ठीक है ना। उनका एक बेसिक क्वेरी ये है कि सर हमारी मैथ्स बहुत अच्छी है, हमारे में टॉपिक तो हो गए हैं पीपीएल और एसआईसीआई तक, और सर वो एमकैट में फंक्शन ग्राफ का क्वेश्चन आया था वो नहीं हुआ सर मेरे से, जबकि मेरा पढ़ा तो सब हुआ है ना। ये टाइम ज्वाइन किया है, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको सब आता होगा, पर जो एग्जाम में आता है वो हम ही बताएंगे आपको, राइट। आपको ये समझना होगा कि क्लासेस लेने के बाद ही एक टॉपिक में आप कंप्लीट फील कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन फंक्शन ग्राफ का आया, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, देखो मैं खुद भी इंजीनियर हूं तो इसलिए मैं इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर सकता हूं, आई हैव अ लिबर्टी टू डू इट, राइट।
तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जब पहला क्वेश्चन आपने उठाया हो और आपसे सॉल्व ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया, तो फिर आपके दिमाग में वो मॉरल प्रेशर, जो पब्लिक प्रेशर होता है ना, वो आ जाता है, सोशल प्रेशर। क्या कि यार मैंने 10th में टॉप किया, मैंने 12th में टॉप किया, मैंने इंजीनियरिंग ले ली, आज तो मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। फिर जो 10 होता है वो आप शस्त्र की तरह यूज करते हो और आप उसे करके दिखाई देते हो, राइट? तो ये वाला जो अप्रोच है ना, वो खत्म करना है और किसी क्वेश्चन पर अड़ना नहीं है। तो द मोमेंट यू फील आफ्टर 1.5 मिनट के क्वेश्चन नहीं हो रहा है, फॉर द टाइमिंग उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो, बाद में देख लेना अगर टाइम मिले। और मेरे हिसाब से लास्ट के 5 मिनट में एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। तो जो पर्सनली मेरे साथ होता है, बिकॉज आई ऑल्सो राइट ईच लाइक कैट ईच ईयर, तो लास्ट के 5 मिनट जब आप टेस्ट दे रहे हो तो जील बहुत ज्यादा होती है, तो अटके हुए सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है ना? ये क्वांट के लिए बोला, आरसी के लिए अप्रोच मत बता रहे, है ना? ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज व्हाट सिलेक्शन, रिजेक्शन। कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली, देन सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। एंड इंटरेस्टिंगली आपको ये पता होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस में इक्वल मार्क्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन आप कर लोगे तो बाहर आपका बहुत सारा सत्कार होगा, आपको लोग पकड़ के माला पहनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपसे बाहर कोई बात भी नहीं करेगा इस बारे में, राइट? 3 नंबर मिलेंगे अगर क्वेश्चन सही हो जाएगा। जितना पानी पी के क्वेश्चन करना है, जो भी करना है, जितनी भी मेहनत कर लेनी है क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही नंबर मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको मिलने वाले नहीं है, राइट? तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया पीपीएल का, उस क्वेश्चन में लिखा था अ ट्रेडर परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹100, ही सोल्ड इट फॉर से 10% प्रॉफिट, कितने का बेचा? तो इसका आंसर तो 110 आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन आया था जो पढ़ने में मेरे को 3-4 मिनट लग गए, है ना? मैं अब आपको वो एग्जांपल दिखाता हूँ। और लास्ट में एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है जो कि आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने की हो, मैं स्पेसिफिकली पूछूंगा नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, कपिल सर मेरे को डांटने लग जाएंगे। तो जिसमें कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब कुछ नहीं आ रहा होगा तो समय बिताने के लिए करना है कुछ कम। क्या आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा हो गया होगा कि आफ्टर 10 or 15 minutes in quant, or suppose in a particular section I talk about VARC, I talk about DILR, क्या 10-15 मिनट में कुछ हो तो रहा नहीं है, ठीक है ना? तो आप क्या कर रहे हैं, उठा के ABCD खेल रहे हैं, यार मेरे को ABCD में ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, तुक्का मारना चालू कर रहे हैं। फिर उन्होंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देख ले, तुक्के कैसे मारे जाए, ठीक है ना? ऐसी भी मैंने देखी है, क्लासेस होती है लोगों की। अगर ये सब कर रहे हो, ये सब बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। इससे बेटर है जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं आपने क्वांट में, सपोज आपने 3 ही टॉपिक्स अभी तक किए हैं, सपोज आपने 4 ही टॉपिक्स अभी तक किए हैं, आप सिर्फ उन 4 टॉपिक्स के क्वेश्चन देख के देखिए कि आपसे वो हो रहे कि नहीं हो रहे। वापस से आकर एनालाइज करिए। उन 4 टॉपिक्स पे तो 100% फोकस होना चाहिए, उनके क्वेश्चंस हुए कि नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब अगला एमकेट देने जाओगे तो गारंटीड कुछ ना कुछ तो और पढ़ के जाओगे, टॉपिक्स ऐड होते चले जाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, लेकिन एक ही एमकेट में सारे टॉपिक आपसे सॉल्व होने वाले नहीं है। सर प्लीज वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट? जी, आई एम शोइंग यू किस तरीके से स्कैनिंग वगैरह कर सकते हैं, राइट? सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस आई एम शोइंग यू, ठीक है? अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको एक फील बता रहा हूँ कि मैं कैसे फील लेता हूँ। क्वेश्चन इज वेरी इजी और टफ काइंड ऑफ, ठीक है ना? जस्ट अ सेक। ओके, सो अब आप पहले क्वेश्चन देखेंगे तो द मोमेंट यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज log2 log3 log4x ऐसा करके इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन x। अगर मेरा लॉग्स पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? अच्छा, आप लोग जरा देखिए स्क्रीन में 1 2 3 ये 3 क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन इजी है? एवरीवन, वेरी इजी कैटेगरी बतानी है आपको। यू जस्ट पुट इट एज 1 2 3 में से कौन सा इजी आपको लगता है। मे बी यू कैन राइट 1 2 3 ऑल, ठीक है? मैं बस देखना चाहता हूँ किस तरीके से आपको इजी लग रहा है, ठीक है? तो लगभग सारे ही लोगों ने आई थिंक 3 टाइप किया है, कुछ लोगों ने 2 and 3 भी किया है, कुछ लोगों ने 1 2 1 3 2 किया है। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट के साथ आकाश ने बताया नॉट बैड। अच्छा, अब जब मैं ये क्वेश्चन करूंगा ना तो मुझे सबसे पहले जो सबसे इजी क्वेश्चन दिखता है मुझे फर्स्ट वाला दिखता है। उसका रीजन है क्योंकि लॉगरिथम टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे इसके बेसिक्स अच्छे से आते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मुझे 5 सेकंड भी नहीं चाहिए, राइट? द मोमेंट आई सी द क्वेश्चन आई कैन से कि ये क्वेश्चन मेरे से होगा कि नहीं होगा। ऑल्दो द सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी, बट पढ़ने में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम होगा। तो जिसने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट भी लिख के दिया है ना, ऑब्वियसली यू कैन रीड द थर्ड क्वेश्चन। वो बोलता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ये है, अच्छा इसमें ये है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी मेरे से हो जाएगा, राइट? सर वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो 4th क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है ना? 5th क्वेश्चन, राइट? 5th क्वेश्चन को आप देखेंगे जहां पे ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल का मैं ऊपर से रिलेशन भी पढ़ूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल है ये पढ़ के यहाँ पे तुरंत फिट कर दूंगा। और एक नीचे वाला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसकी थोड़ी थोड़ी ब्लिंक दिखी हुई है, दैट इज व्हाट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन।
इफ आई एम अवेयर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, देन तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस सेक्शन। देखो दो चीजें होती हैं, एक द स्ट्रेंथ ऑफ योर्स कंपैरेटिवली, अगर आपकी क्वांट अच्छी है तो क्वांट अच्छी है, मैं मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, इसमें रिलेटिवली ज्यादा क्या अच्छा लगता है। जैसे कि दूसरा ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ व्हाट एवरेज मिक्सचर्स। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कुछ भयंकर सा अटेम्प्ट कर रहे होगे जिसमें मैक्सिमम वैल्यू और जाने कैसे अलजेब्रा के एक्सप्रेशन दिख रहे होंगे, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को क्यों नहीं टच करते, राइट? तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, आप में से भी अभी बहुत सारे लोगों ने अग्री किया ऑब्वियसली कि सर जब लास्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, जब मैंने पूरा एम कट अटेम्प्ट कर लिया तो मैंने देखा लास्ट के 8 मेरे से हुए ही नहीं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस लास्ट के 8 में बहुत इजी थे और पहले वाले 25 में बहुत टफ थे। सर नेक्स्ट स्लाइड। आगे सर। ओके अच्छा, मेरे पास अपडेट नहीं हुआ है, आई थिंक देयर इज ओके। नहीं हुई? हाँ हो गई, ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है आई थिंक। ओके अच्छा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर, जब हम लोग थर्ड वाले की बात कर रहे थे, तो देखो क्वेश्चन नंबर ये जो 8th है, ठीक है ना, अ मर्चेंट सोल्ड अ प्रोडक्ट एट 20% प्रॉफिट, ये वन लाइनर है। ये देखिए पहला वाला एम कैट मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि इसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन भी है। अब एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 3-3 लाइंस दिखाई दे रही है, 4-4 लाइंस दिखाई दे रही है, सब्जेक्चुअल वाला क्वेश्चन है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन उतनी देर में सॉल्व हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हैव टू कंसीडर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर कंपैरेटिवली इजियर, एंड द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन आपको फील आ जाता है। तो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ते ही देखते ही फील आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर आप मेरे से बात करें 9th में और 8th में, तो मैं 9th में आपको इंप्रेस करने के लिए ऑब्वियसली बोल सकता हूँ बिकॉज एक थ्योरम मेरे को याद है, बट अगर मैंने अभी स्टार्ट किया है तो मैं 9th को देख भी नहीं पाऊंगा बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता, मॉड इनइक्वालिटी नाम का एक टर्म आ गया है। शायद क्वेश्चन नंबर 1 देख के मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और देखो two types of questions are there when you talk about easy. One is general easy question, other are easy topic based question. Easy topic based question वो लोग लगाते हैं जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं, इन द सेंस उनको नॉलेज होती है। जनरल इजी क्वेश्चन सड़क पे चलते हुए ऑटो वाले से भी क्वेश्चन पूछोगे तो बता देगा। तो अगर आप सीधे सीधे किसी से कहो यार भैया मैंने एक आम खरीदा 20% प्रॉफिट पे 30% पे बेचा, तो दीज आर काइंड ऑफ व्हाट जनरल इजी क्वेश्चन। तो ट्राई टू सर्च ऑल जनरल इजी क्वेश्चंस जितने भी एमकैट आपने दिए हैं। ऑब्वियसली अभी आपने एक दिया होगा या फिर 2 दिए, ठीक है ना, यो भी 1-2 एमकैट्स आपने दिए, आपको सिर्फ ये एनालाइज करना है वापस से जाकर कि क्या उसमें जनरल इजी क्वेश्चंस थे। तो आई एम वेरी श्योर आपको 5, 6, 7 तो ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो कोई कैसे भी लगा सकता है, कभी भी लगा सकता है, एनी टाइम। सर नेक्स्ट। ओके सो अब आप ये देख सकते हैं नंबर्स का एक भयंकर सा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 to 22 में जो 15th क्वेश्चन है वो दिखने में बहुत खतरनाक सा है, बट एक टॉपिक होता है जो हम पढ़ाते हैं OBQ, ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन। इतने क्वेश्चंस बताने के बाद मेरा सिर्फ एक ही मतलब है, टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्वेश्चन इजी दिखना चाहिए, क्वेश्चन वन लाइनर होना चाहिए और आपको देखते ही फील आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा। देन ओनली यू मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन जस्ट बिकॉज कि आपकी मैथ्स अच्छी है और आपको बाहर जाके कुछ और प्राइज मिलने वाला है। आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। सर नेक्स्ट। बहुत बार क्या होता है, ये लोग एक क्वेश्चन पे अटैक करते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन को आधा सॉल्व कर लेते हैं। फिर इनको ऐसा लगता है कि अब आधा कर लिया, थोड़ा टाइम और दे देता हूँ, थोड़ा सा और दे देता हूँ, थोड़ा सा और दे देता हूँ। उस थोड़ा सा के चक्कर में एंड अप करते हैं बहुत सारा टाइम पे, फिर ये लड़ाई लड़ने लगते हैं खुद से ही। अरे मैंने इतना टाइम दे दिया, अब तो मुझे निकालना ही है। ये अप्रोच गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए कि मुझे एग्जाम में जितना आता है, जितना मुझे नॉलेज है, उतना मैं अटेम्प्ट जरूर कर लूं और वो बहुत नाइसली कर लूं। एक बार जब मैं जितना मुझे आता है वो मैं सारा देख लिया, मैंने सेक्शन देख लिया, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, फिर आप एक क्वेश्चन में बैठ के आराम से टाइम पास करो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। मतलब मे बी यू फील कि आप अपना ईगो सेटिस्फाई करते रहो और ज्यादा से ज्यादा ईगो उनका ही होता है जिनकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है, राइट। देन यू फील कि यार मैंने एक क्वेश्चन पिक किया तो मुझसे तो ये जरूर हो जाएगा, ठीक है। और फिर वही बात जो मैं अभी बोल भी रहा था कि सोशल प्रेशर जब आपके माइंड में आता है ना, ये सारा काम वही करवाता है आपसे, ठीक है ना। तो वो अड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। that is the worst thing that you can do about like of an AIMCAT, like in an AIMCAT, right? Sir, next move पर जाते हैं। Let's talk about LRDI, I believe. Okay, LRDI में बहुत सारे लोगों की दिक्कत है। देखो ये सारी चीजें पढ़ लूंगा मैं, पर ओवरऑल एक बात याद रखना, LRDI सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये जो भी हम बात करेंगे वो सब इररिलेवेंट है अगर आप रोज 2-3-4 सेट्स नहीं लगा रहे तो। आप चाहे IIT इंजीनियर हो,
आप चाहे दुनिया के बेस्ट कॉलेज से हो, आप चाहे दुनिया के वर्स्ट कॉलेज से हो, वो कॉलेज की डेफिनेशन मेरे को नहीं पता है, आपके चाहे 99% 12th में आए हो, चाहे 10 20 30 40% आए हो, खैर 50+% बोल देता हूँ बिकॉज वो एलिजिबिलिटी बना देता है, ठीक है ना। तो कितना भी कम हो, कितना भी ज्यादा हो, LRDI इंप्रूव करने का सिर्फ एक तरीका है, रोज 2 3 4 5 सेट्स लगाने, मटेरियल बेसिक खत्म करते हुए, देन फाउंडेशन टेस्ट, वो सब तो काम कर रहे हैं। देन ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट एन एमकैट, LRDI का जब सेट आता है ना, तो देखते ही हाथ पांव फूल जाते हैं। और पहला वाला सेट जब उठाते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने कसम खा रखी होती है कौन सी, कि सर पहला उठाएंगे, वो करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, और करते करते ऐसे लोग तो कभी 2 या 3 4 सेट से ऊपर अटेम्प्ट भी करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो उनको दिखाई नहीं देता थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना। अच्छा, LIDI में कॉमन क्वेश्चन है, इससे पहले कि मैं चालू करूं, LIDI के कॉमन क्वेश्चन है 6-7 मिनट तक। सर किसी क्वेश्चन में 3-4-5 मिनट लग गए और तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो 3-4-5 मिनट के बाद रियलाइज हुआ तो काफी टाइम खराब हो गया, पर 3-4 मिनट के बाद अगर ये फील हो गया है कि नहीं होगा तो फिर मत करो, वही बेस्ट है। छोड़ दो। 5 मिनट के बाद अगर ये फील आ गया कि सर अब मैं मतलब इसे छोड़ू कैसे, क्योंकि मैंने 5 मिनट लगा दिए और करते हुए बन नहीं रहा है, तो यार याद करो कि क्या वो लास्ट क्वेश्चन है क्या जो लगा रहे हो, उसके अलावा भी तो क्वेश्चन होंगे। तो आपको सिर्फ इजी पिक कर रहे हैं। इजी पिक करना कैसा होता है? इजी पिक प्रैक्टिस से आता है, आपकी पर्सनल एनालिसिस होती है। जैसे एक बंदे की जिसकी क्वांट बहुत अच्छी है, उसको डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स बहुत इजी लगते हैं, राइट, कंपैरेटिवली कैलकुलेशन बेस्ड होता है, तो ही लव्स टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, उसको लगेगा यार मैं तो फिगर तुरंत निकाल दूंगा, राइट। दूसरा टाइम है जिसका रीजनिंग स्किल्स अच्छी है, वो द मोमेंट ही सी सम लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन, चूंकि उसने प्रैक्टिस की हुई तो उसको वो अच्छा लगेगा। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट अगर कैट से प्यार करते हो तो एक काम आज ही चालू कर दो, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, शुरू वाले 4 चैप्टर्स हैं, लीनियर, सर्कुलर, बाइनरी लॉजिक, डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट बाइनरी लॉजिक, लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशंस, सिलेक्शंस, एंड देन लास्ट वाला क्वांट बेस्ड रीजनिंग। ये 4-5 टॉपिक्स है, इनसे प्यार करना स्टार्ट करो। अपने आप से रोज बोलो क्या मैं कर सकता हूँ, और जितना भी मटेरियल लगाओ सब टाइम लिमिट्स के साथ लगाते रहो, राइट। नाउ क्विक स्कैनिंग ऑफ ऑल द सेट्स इज रिक्वायर्ड, जल्दी जल्दी से सेट्स देखने चाहिए। नीड नॉट टू सॉल्व ऑल द सेट्स इन द एमकैट, आपको 8 नहीं करने, आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली रिजेक्शन इज इंपॉर्टेंट, देन सिलेक्शंस। और आप में से जिनके परसेंटाइल ज्यादा आते हैं, जो स्टूडेंट अच्छे हैं, वो कैट एमकैट को अटेम्प्ट करने से पहले या फिर कैट को देने से पहले टारगेट बना के जाते हैं कि यार मैं इस वाले एमकैट में 6 सेट्स तो कर ही दूंगा, पिछले वाले में तो एक भी नहीं हुआ था पर इस वाले में 6 जरूर कर दूंगा। और जैसे ही एक सेट नहीं होता है तो फिर उन्हें पिछले वाले एमकैट की याद आती है और इस वाले में भी 1 या 2 या 3 पे अटक जाते हैं, राइट। तो बेस्ट तरीका क्या है? कोई टारगेट नहीं बनाना है, हाँ नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने आगे लिखा भी है, 3 से 4 सेट्स करने पर अगर ज्यादा क्वेश्चन कर ले, ऑब्वियसली आप स्टूडेंट कैन इजीली गेट अराउंड 90+% 95% के आसपास कुछ आ जाएगा, राइट। एंड देन 2+ सेट्स इज अमेजिंग, इज नॉट बैड एट ऑल। अगर आप बिगिनर हैं, आपकी LRDI मैं ये तो नहीं बोल सकता कि पहले अच्छी नहीं थी बिकॉज आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, पर हाँ LRDI आपने बहुत अच्छे से स्टार्ट नहीं किया था। 2-3 sets in AIMCAT in LRDI section is not bad at all. It's a very good thing that you can start with, right? And then golden rule is what? Don't panic. ठीक है। ओवरऑल अगर मैं देखूंगा ना, अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग मेरे को बताइए ओवरऑल टाइम कितना होता है फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन, लाइक पर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलता है? इफ यू टॉक अबाउट LRDI सेट के लिए बात कर रहा हूँ, सेट फॉर अ सेट। रविंद्र, इट विल कम विद प्रैक्टिस, राइट। मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताइए, है ना। हाँ 60/8, Anisha, not bad. You are a very good maths student, right? So I can calculate it as what? 7.5, I believe, right? But it is wrong. 8 सेट्स तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। 8 सेट आपसे होंगे नहीं, ठीक है। अब ताकत लगा लेते हैं फिर भी लोग 8 नहीं होते। होते कितने हैं? एक एवरेज स्टूडेंट से 2 से 3 अटेम्प्ट होते हैं और एक बहुत अच्छे स्टूडेंट से 5 सेट्स तक अटेम्प्ट होते हैं, 5, और बहुत इजी एमकेट आ गया तो 6, 5 to 6। मैं अगर बोलूं ऑन एन एवरेज बात, तो 3 से 4 सेट्स की अगर हम बात करें, सो लेट अस से अबाउट 4 सेट्स, या तो 4 सेट्स के लिए आपको ऑन एन एवरेज 15 मिनट मिलते हैं। पर क्या वो 4 सेट्स आपको देखते ही पहचानने में आ जाते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो मैं मान लेता हूँ बचे हुए जो 4 सेट्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए भी आपको 10-12 मिनट चाहिए, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही तो फील कर पाते हो कि वो मेरे से नहीं होगा, और कहीं 2-4 मिनट खराब भी होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ऑन एन एवरेज बात करो तो 10-12 मिनट एक सेट के लिए होता है, और ऑन अ गिवन डे आपका एम कट हिलक गया, आपसे सेट नहीं हुआ, ठीक है ना, तो यार आप 20 मिनट लगा दो, 15 मिनट लगा दो, बट स्टार्टिंग में 2 से 3 सेट्स करने की पहले आदत डालो, then only you'll be able to solve around 4 or 5 sets, and then depending on the difficulty level also, कभी-कभी हमारे MCATs में you'll see the cutoff says 15 and 16 marks also, मतलब आप 6 या 7 क्वेश्चन करोगे, you'll be able to get around 85 percentile, ठीक है। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि हम परसेंटाइल, ये जो कट ऑफ बोलते हैं किसको बोलते हैं? Anyone who can imply what is the meaning of cut off when we are saying that what is cut off? Cut off is what?
एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस विल टेक आफ्टर दिस पोस्ट एमकैट एनालिसिस, उसमें बता ले, फिर हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चंस लेते जाएंगे। ये थ्रेशोल्ड कौन डिसाइड करता है? टाइम इंस्टीट्यूट को कैसे पता लग जाता है कि ये थ्रेशोल्ड है? तो मैं अभी ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ कि 85 परसेंटाइल को हम लोग कट ऑफ मान के चलते हैं, बिकॉज हम ये बिलीव करते हैं कि 85 परसेंटाइल अगर आपका पर्टिकुलर सेक्शन में आया तो कोई भी आईएम उस पर्टिकुलर परसेंटाइल से ऊपर इंडिविजुअल सेक्शंस में नहीं मांगता है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट एलआरडीआई, तो अगर आपका लमसम 85 परसेंटाइल आ गया तो आप हमेशा देखेंगे तो हमारा 85 परसेंटाइल ही लगभग कट ऑफ रहता है, ठीक है ना, उतने मार्क्स पे ही वो कट ऑफ रहता है। कैलकुलेशन बहुत सारी इन्वॉल्व है, बट यू द मीनिंग ऑफ दिस थिंग इज व्हाट, व्हेन आई एम सेइंग कि यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ, दैट मींस इट इज अराउंड 85 परसेंटाइल आपको लाने हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन में, राइट? और हाँ, फिर वो बन जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो गोल्डन रूल वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, वी नीड नॉट टू बी पैनिक अबाउट LRDI, and LRDI is overall very tough for every student. Reason is you belongs to any background, आप मैथ्स अच्छी बोल सकते हो, आप इंग्लिश अच्छी खराब बोल सकते हो, आप मैथ्स के बारे में भी ये बोल सकते हो, लेकिन आप LRDI के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि LRDI हर एमकैट के साथ बदलती है, हर टेस्ट के साथ बिल्कुल चेंज हो जाता है माहौल, ठीक है ना। तो मैं आपको बस एक क्वेश्चन दिखा दूं, एक दो क्वेश्चन दिखा दूं किस तरीके से यू कैन टेक अ फील थ्रू द क्वेश्चंस, राइट, कि कैसे सेट को मैं सिलेक्ट करता हूं पर्सनली, राइट। मैं बस एक बार शेयर कर लूं, ठीक है। ये आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे बहुत कम सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक छोटी सी टेबल दी है, इसमें नीचे 3-4 लाइन दी है, एक लाइन मिसिंग है यहाँ पे, 3 पॉइंट्स है यहाँ पे, 2 पॉइंट्स में दिखा पाया हूं इस स्लाइड में, राइट। सो अ सेट फॉलोड बाय 3 और 4 स्टेटमेंट्स। अगर मैंने ऐसे टाइप का क्वेश्चन पहले लगाया है, मे बी दिस इज अ फेवरेबल सेट फॉर मी। आई एम शोइंग यू द नेक्स्ट सेट नाउ। सर नेक्स्ट सेट एक बार 8 मतलब 4-4 या 5-5 या पूरा का पूरा सेक्शन आप एक बार में स्कैन कर जाइए, इज नॉट बैड एट ऑल। इसमें मैंने आपको दिखाया नहीं है, ऊपर एक स्पाइडर डायग्राम बना हुआ है जो कि नॉर्मली हम लोग क्लासेस में करते हैं, और नीचे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसमें कि देखेंगे आप इन द मिड ये ब्लैकिश जो होगा ना, मतलब स्क्रॉल आपको ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब द इंफॉर्मेशन इज ह्यूज। यार कुछ एमकैट में सेट्स तो ऐसे आते हैं जिनको पढ़ने के लिए 5 मिनट चाहिए, कुछ ऐसे आते हैं जिनको पढ़ते ही देखते ही आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर वो इजी है, आपको लगता है वो टॉपिक आपने वैसा पहले लगाया हुआ है, वो क्वेश्चंस होने लायक होते हैं, कंपैरेटिवली लेसर इंफॉर्मेशन वाले। सी देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। आई पर्सनली बिलीव एक सेट जो मैंने पहले लगाया है एमकैट में, मुझे सरल सा फीलिंग आ रहा है देखकर, मे बी वो किसी भी जानने का होगा, आई कैन सॉल्व इट, राइट। एक दूसरा थॉट है जो मेरे फैकल्टी जो मुझे पढ़ाते थे वो बोलते थे कि द मोर इज द इंफॉर्मेशन, वैसे वो आरसी के लिए ज्यादा बोलते थे, ठीक है ना। और फिर एलआरडीए वाले फैकल्टी भी उसको कॉपी करते थे कहीं ना कहीं, वो ये बोलते थे द मोर इज द इंफॉर्मेशन द इजियर इज द डेटा, राइट, ओवरऑल, ठीक है ना, इजियर इज द सेट। बट आई पर्सनली बिलीव कि जब मोर वाले को पढ़ने में मुझे इतना टाइम लगेगा, व्हेन यू टॉक अबाउट एलआरडीआई, तो मैं बेटर है कि 5-6 मिनट डिवोट करने से बेटर है मैं दूसरा क्वेश्चन उठाऊंगा जिसमें कि मुझे देखते ही फील आ जाता है मेरे से होगा नहीं होगा, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। एलआरडीआई का सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद ज्यादातर लोगों की क्वांट इसलिए खराब होती है क्योंकि एलआरडीआई दूसरा सेक्शन होता है, वो जब क्वांट पे पहुंचते हैं तो उनका मूड वैसे ही खराब हो चुका होता है, क्योंकि एलआरडीआई उतना अच्छा उन्हें फील आता ही नहीं है कभी भी, राइट। एंड देन यू सी द थर्ड स्लाइड, लाइक एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको। अब आप ये देखो, अगर आपने ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लगाए हैं, गेम्स रिलेटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना, 8 राउंड्स है, शॉर्ट है, 4-5 लाइंस है, अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ कुछ पहले से अटेम्प्ट किया हुआ है, देखते ही फीलिंग आता है, ऑब्वियसली 1-2 मिनट के बाद और उसका एक्चुअल फील आएगा मेरे से होगा नहीं होगा, बट यस स्टिल आई कैन टेक अ कॉल कि ये क्वेश्चन शायद मैं लगा सकता हूं। तो दिस इज हाउ यू कैन टेक द फील फ्रॉम द क्वेश्चंस, राइट। सो नेक्स्ट, एंड देन इसमें एक बहुत विचित्र सा ग्राफ आया था और उसके नीचे कुछ पॉइंटर्स दे रखे थे, बट ग्राफ था और उसके नीचे बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि 2-3 लाइंस में कवर की हुई है, राइट, 2-3 स्टेटमेंट्स दिए। आई थिंक दीस काइंड ऑफ सेट्स जिसमें कि ग्राफ दिखा, छोटा सा इंफॉर्मेशन है, तुरंत अप्रोच करिए, बिकॉज 2-2.5 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि होगा कि नहीं होगा, काइंड ऑफ, राइट। और अगर ऐसा कुछ कुछ लगाने की हिम्मत है तो वो नॉर्मली होते हैं क्वेश्चंस, इज नॉट, दे आर नॉट वेरी बिग डील फॉर यू, राइट। वो अटेम्प्ट भी करोगे आप एमकैट, देन ओनली आल्सो दीस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। Okay, sir. Okay, let's move to the second part of the talk and interaction. पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो प्री टेस्ट कर रहे थे, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम कोई टेस्ट देते हैं उसके बाद वी शुड बी स्पेंडिंग समवेयर अराउंड 3 to 4 hours on that test. I believe it should be more than that, but minimum 3 to 4 hours on that test, because
I firmly believe that you should reattempt all the questions. Right questions को भी एक बार तो दोबारा करना चाहिए. उससे ये पता पड़ जाता है कि मैंने उस वक्त मार्क करके राइट कर दिया हो, कहीं ऐसा तुक्का तो नहीं मार दिया, या मैंने conceptually तो दिक्कत है but then somehow I marked the answer. So all these things they help you when you do a detailed analysis. अब देखो कुछ ग्राफ है तुम्हारे स्क्रीन पे. टोटल क्वेश्चंस जो पेपर में है TQ, they can be divided into two parts: questions that you have attempted and questions which you have not attempted. इसके अलावा तो कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं. तो जब हम टेस्ट देके आते हैं तो हमें देखना है सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन अटेम्प्टेड और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाए. इन क्वेश्चन अटेम्प्टेड कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, either it is right or it is wrong. Okay, either it is right or it is wrong. Question not attempted can further be classified into two parts. जब दोबारा अटेम्प्ट करूंगा तब रॉन्ग हो गया या राइट हो गया. राइट हो गया तो देखूंगा कहीं गेस से तो राइट नहीं हो गया, या आई हैव अप्लाइड कंसेप्ट. अब तुम्हारे को इस ग्राफ से क्या होगा, हर टेस्ट के बाद में वंस यू डू दिस एनालिसिस यू हैव टू आइडेंटिफाई, you have to make a table. Through this table you will identify your strengths and weakness. आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई होंगे, और जब आप टाइम का एनालिसिस लेते हो तो गुड पार्ट इज दैट टाइम गिव्स यू एन एनालिसिस इन अ वेरी डिटेल्ड फॉर्मेट where even topics are given to you. Topics which you got wrong, they are also given to you. So let us say for example in English there were 8 questions of inferences and you got 6 wrong. So now you have an idea that you are consistently getting inference wrong. तो एक टाइप का क्वेश्चन है इंफरेंस जिसके नंबर्स भी बहुत हैं और आपके गलत भी बहुत हो रहे हैं. सो दैट सेज कि आपको इंफरेंस पे काम करना है. रॉन्ग क्वेश्चन में जब अटेम्प्टेड का रॉन्ग है दोबारा किया, ये तो फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट है, तो विदाउट टाइम लिमिट करके देखा उसको. विदाउट टाइम लिमिट करके देखा तो क्या मिलेगा आपको, एरिया वाइज क्लासिफिकेशन मिलेगा. दैट ओके ये इस एरिया का है और मेरा लगातार हर एमकेट में गलत हो रहा है. दैट मींस दैट एरिया इज अ ट्रबल. सो this through this exercise you will be in a position to draw this kind of a chart. This table says make table for every area, identify type of mistakes, identify weak areas. Type of mistakes से क्या मतलब है, आप मैथ्स के एरिया में फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आपसे सिली मिस्टेक्स हो सकता है, आप जल्दबाजी में बिकॉज ऑफ नर्वसनेस प्रेशर आप कैलकुलेशन ही गलत कर गए, ये मिस्टेक्स हो सकती हैं. So you'll have to identify those type of mistakes. And good part is the tool that you get, which tool, student homepage के ऊपर you get a detailed analysis of every test. For example, this kind of an analysis is available to you. Okay, अब देखो इसमें क्या क्या है. इसमें स्कोर कार्ड आता है सबसे पहले, फिर परफॉर्मेंस स्नैपशॉट है, देन ऑल इंडिया परफॉर्मेंस, then solutions and analysis for every question, then sub area wise analysis. Sub area wise analysis means every section में उसका भी sub area करके, like for example in English you will get VA 3 different type of questions, how many wrong, then bookmarked question, then time spent analysis of all questions. Time spent analysis, what does this mean? This means आपने एक particular question पे कितना time spend किया, जिन्होंने उस question को सही किया उन्होंने कितना time spend किया, average time spent, and जिन्होंने all over whosoever has attempted that question how much time they spent. So you get an idea, अच्छा यार मैंने तो इतना time spend कर दिया फिर भी मेरा गलत हो गया. So you actually identify through this analysis lot of things which otherwise you cannot get. So a lot of data would be provided to you after every MCAT. This will help you to understand okay where I'm going wrong. अब जैसे कोई बच्चा होगा XYZ, ठीक है, उसका आपको दिख रहा है एक्यूरेसी परसेंट भी आता है, नेट स्कोर, कट ऑफ मार्क्स, एवरीथिंग यू गेट, ठीक है. तो ये ऐसा भी होता है. एंड वन यू गेट दिस आल्सो. नाउ दिस इज अनदर बॉय, लेट अस से दिस इज क्वेश्चन वाइज एनालिसिस वेयर क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर माय आंसर. सो यू विल गेट रेड है तो इट इज इंडिकेटिंग अटेम्प्टेड बट रॉन्ग, ऑरेंज है इट इज इंडिकेटिंग नॉट अटेम्प्टेड, एंड ग्रीन इज अटेम्प्टेड एंड करेक्ट. Okay, so you have marks, symbol color marks. This is very good, and इससे आपको अपनी परसेंटेज एक्यूरेसी पता पड़ती है, आपको पता पड़ता है आप कहाँ गलत जा रहे हो. और इसके बाद ये देखो, this is called as a snapshot of your own performance, and then this
For example, question number 1 was based on contextual reference. Attempted right. अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ उस बच्चे का, ऑल्दो ये बहुत अच्छा बच्चा होगा, इसके सब कुछ हरा है, ऐसा बहुत मुश्किल से दिखता है ना, बस भगवान से दुआ करो तुम्हारा सब कुछ हरा दिखे. ग्रीन मीन्स ऑल राइट, है ना, रेड मीन्स रॉन्ग, तो ये ऐसा ही दिखना चाहिए. जैसे सपोज करो पैरा कंप्लीशन क्वेश्चंस, देयर वर 4 क्वेश्चंस, 31, 32, 33, 34. He got 2 right, he got 2 wrong. That means he need to work on paraforming questions. इसको ये चार्ट itself एक आइडिया देता है कि where I am going wrong. Similarly in maths also you get topics, और topics के बाद पता पड़ जाएगा geometry question number 8, 9, 11, 13, 14 they are from geometry and I got all 4 wrong. That means I need to work on geometry, और मेरा geometry क्लास में नहीं हुआ है, मैंने ऐसे ही जाके अटेम्प्ट कर दिया, बिकॉज मैं तो मान के चलता हूँ मुझे ज्योमेट्री आती है. सो दिस इज रॉन्ग. You should attempt, at least in quant, you should attempt those questions only where you are confident you have done the topic in class and you feel धीरे धीरे मेरे topics जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे मैं ऐड करता जाऊंगा, जैसा आपको भी सर ने भी बोला. तो ऐसे करके इंग्लिश में inference, so many questions on inference, still left out questions at 2, that means left out है, so अभी भी छोड़ के आ रहा है. अब इसको इन 2-4 क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है कि मैंने क्यों छोड़ा. गलत वाले में क्या एनालिसिस करना है, गलत वाले में ये एनालिसिस करना है, why I got it wrong, what was the reason to mark answer, I marked A, answer was B, so what is the logic behind B, what is the logic behind my A. पहले मैं मेरा A एलिमिनेट करूंगा. देखो सुमित सर ने इनिशियली एक बात बोली थी बड़ी अच्छी, जो बहुत थिंकर्स हैं, ओवर थिंकर्स हैं, बहुत ज्यादा इस माइंडसेट से आते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है, वो गड़बड़ कर जाते हैं. वो क्यों बोला उन्होंने, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उनको अपने रीजन को एलिमिनेट करने में बहुत टाइम लगता है. उनका एक रीजन है, उनको लगता है ये रीजन ठीक है. अब कपिल सर ने क्या बोला, सुमित सर ने क्या बोला, वो सेकेंडरी हो गया उनके लिए. उनका मानना है मैंने भी तो एक लॉजिक लगाया था, बट वो ये नहीं मानते कि मेरा लॉजिक गलत है. तो जब तक तुम्हें ये पता नहीं पड़ेगा कि व्हाई योर लॉजिक इज रॉन्ग, यू विल नॉट बी एबल टू मेक दैट बोर्ड व्हाइट. जब तक वो बोर्ड व्हाइट नहीं होगा उस पर नया लॉजिक लिखा नहीं जाएगा. So to write new logic, you will have to first clean what you have given. That is actually what you do through this table given to you, through all the tools which I have explained you. ये सब online tools हैं जो तुमको available है. And I believe ये online tools बहुत अच्छे से use कर सकते हो. अगर देखते हो तो student home page के ऊपर AIMCAT की glossary होगी, snapshot, sub area wise performance, critical analysis, time talk, all these things are given to you. Area wise analysis, this is given to you primarily with the logic, with the purpose, so that you can improve your performance through this artificial intelligence tool. Here data capturing is there. और तुम्हें पता है जितने लोग high score करते हैं, who are they? They analyze this data after attempting this test again. So I said spending 4 to 5 hours on a test would not be a tough task. 3 घंटे तो उसको दोबारा करने में लग जाएंगे. अब आप बोलोगे सर जो क्वेश्चन राइट था उसको दोबारा क्यों करा रहे हो, वो राइट था, आगे भी राइट होगा, मैं मानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए करा रहा हूं, मैंने गलती से तुक्का तो नहीं मार दिया. तो क्या मेरा लॉजिक ठीक है, मेरे कंसेप्ट ठीक लगे हुए, बस दैट्स इट. वो राइट है तो आगे भी राइट होगा. नाउ जब क्लासरूम्स में आ जाओगे आगे, जब भी आओगे, तो हमारे क्या सिस्टम है एक बहुत अच्छा, हम लोग हार्ड कॉपी देते हैं एमकैट की, है ना, हार्ड कॉपी मिलती है पेपर बुकलेट. आगे जब क्लासरूम में आओगे, मुझे नहीं पता क्लासरूम कब खुलेगा, जब भी खुलेगा वो हार्ड कॉपीज आ जाएंगी. उसमें इन टेस्ट के जो क्वेश्चंस आपने गलत किए, या जैसे आपका क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड है, अभी तो सिलेबस नहीं किया हुआ बहुत सारा, तो उस पे Q&A नॉट अटेम्प्टेड लिख दो और रॉन्ग पे W लिख दो. फिर अक्टूबर के अंदर जब तुम आके हमसे क्वेश्चन पूछोगे अब हम क्या करें, हमारे को क्या रिवाइज करना है, तो मैं और बाकी फैकल्टी मेंबर्स, सुमित सर बैठे हैं यहाँ पे, हम सब एक ही चीज बोलते हैं, एमकेट के गड्ढा क्वेश्चन करो. गड्ढा क्वेश्चन कौन से हैं, जिसमें तुम गिर गए थे, वो कौन से होंगे, या तो नॉट अटेम्प्टेड या रॉन्ग. इन्हीं में तो अपन गिरे थे, या तो नॉट अटेम्प्टेड था या रॉन्ग था. सो डू दीज क्वेश्चंस अगेन इन लास्ट 1 मंथ, जिससे मुझे लास्ट में वापस से एक पुश मिल जाए, मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है इस टाइप का या अटेम्प्ट करना है. अगर छोड़ना है तो एक बार वापस रिवाइज करके जा रहा हूं कौन से टाइप का क्वेश्चन छोड़ना है. ओके सुमित सर, कमेंट ऑन दिस. यस सर. सो yes, I think that is the most important thing कि आप जब AIMCAT देते हो और फिर AIMCAT to AIMCAT जब आप आगे जा रहे हो तो बीच में वो शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाते जाओगे, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं बेसिकली
वो आप वापस से देखकर आपको जाना चाहिए कि जो क्वेश्चंस पहली बार में नहीं हुए थे काइंड ऑफ वो तो करने ही करने चाहिए, गड्ढा क्वेश्चन जो सर कह रहे थे, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल सर बिल्कुल सेम है, सेम फ्रॉम हियर राइट। Now guys, in case you have any query, you can ask us. In case you have any query, you can ask us. पूजा की क्वेरी आप लीजिए सर। Okay. उससे पहले मैंने अमन को आंसर दे दिया है। Means we have to again attempt the same exam. Yes, you should attempt all the questions. You should attempt all the questions now. Okay, one by one, and then eliminate them in 3 parts. Total questions, question attempted, question right, question wrong. Okay. Okay. और बोलो queries. पीछे कुछ queries लिखी थी उनको आगे वापस ले आओ। हाँ वो तो हाँ पूछा। सर आप बोलो रविंद्र को। सर रविंद्र कांग्रेचुलेशन, यू हैव डन अ लॉट। बहुत बड़ा बात है, आप कुछ कर लिया, जून का महीना भी चालू बड़ी बात है, आपने आधा कर लिया है। और बिलीव यू मी, आधा अगर आपने कर लिया है मतलब आप 100 में से 50 क्वेश्चंस लगा लोगे। एंड सो वी हैव अ 99 परसेंटाइलर विद अस राइट, सो दैट इज ग्रेट। रविंद्र यू डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, वो कवर हो जाएगा। आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, जितना हुआ है क्या वो आपको आता है, क्या वो आप एमकैट्स में सॉल्व कर रहे हो, सो वरी अबाउट द सिलेबस राइट, वो हम करा देंगे, हमारी टेंशन है राइट। सर पूजा का आप ले लीजिए। अच्छा पूजा का मैं बोल रहा हूँ सर, क्वांट में कहाँ से मटेरियल प्रैक्टिस करें बेटा? पूजा मटेरियल प्रैक्टिस ऑब्वियसली जो एसएम बुकलेट्स है, जो क्लास में मटेरियल ऑब्वियसली फैकल्टी पढ़ा रहा है, जो हैंडआउट्स आपको दे रखे हैं, देन ऑब्वियसली फाउंडेशन टेस्ट आप बीच बीच में जब टॉपिक्स खत्म कर रहे हो तो फाउंडेशन टेस्ट कर रहे हो। इफ यू आर नॉट वेरी गुड एट क्वांट तो आप एक स्पेशल सपोर्ट इन क्वांट बुकलेट दे रखी है, वहां से सॉल्व कर रहे हो। ये बेसिक मटेरियल तो पहले एक बार खत्म कर ले, देन वी कैन बिल्कुल नहीं है ना, बिवेयर ऑफ एनी अदर बुक अदर देन टाइम राइट। आई कैन से इट प्राउडली दैट टाइम इज द बेस्ट मटेरियल फॉर कैट, ठीक है ना। हर साल अपडेट होता है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक बार आप टाइम का मटेरियल पूरा खत्म कर लीजिए, पर वो इस साल नहीं हो सकता किसी भी हालत में राइट। तो आप बस जैसे जैसे खत्म करते हैं, यू ऑलवेज पोस्ट इट कि और कहां से लगाना है, क्या लगाना है, जो आपने फिनिश किया, देन ओनली वी कैन टेल यू राइट। ओके सर, अब अनीशा का बता दीजिए आप। MCAT doubt solving class, yes, you will have MCAT analysis session by faculty members, don't worry. HP को आप ले लीजिए सर, HP की query. Yes sir. Sir, what if I solve the module of a नाम topic? रखा करो अपने, HP क्या लिख दिया तुमने? हाँ मैंने समझ में नहीं आया। सर, मैंने इसको कल भी कहा था कि ये नाम दिखेगा, कल शाम वाली क्लास में था ये मेरी, मैंने इसको डांटा था पर ये माना नहीं, पर कोई बात नहीं। तो ये कहता है कि I solved the module of a topic, still I am not able to solve that topic question in MCAT. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप क्या करोगे, आप जाकर देखो क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं था। अगर क्वेश्चन बहुत टफ था और आप लिमिटेड टाइम में नहीं कर पाए, इज नॉट अ वेरी बिग डील फॉर यू राइट। क्वेश्चन अगर एवरेज या बिलो एवरेज लेवल का था तो आपको जाकर जो जनरे का क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, जैसे कि वो इक्वेशन का यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट था, तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट एक बार आप फिर से लगा लो, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट। और जो शॉर्ट नोट्स वगैरह थे वो हर MCAT में जाने से पहले जो भी आपके शॉर्ट नोट्स है उसको रट कर अच्छे से याद करके जाइए, वुड बी ग्रेट फॉर अस। मैं थोड़ा सा कमेंट कर रहा हूँ HP आपको। देखो HP, जब हम क्वेश्चन अटेम्प्टेड करते हैं तो हम करके आ गए। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड का हमें रीजन जानना पड़ेगा कि हमने उसे अटेम्प्ट क्यों नहीं किया। पहला रीजन हो सकता है टॉपिक ही नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल गम नहीं है। दूसरा, टॉपिक तो हो गया बट फिर भी मैं अटेम्प्ट करके नहीं आया, दैट मीन्स दो बातें हो सकती है। कंसेप्चुअल एरर है तो वापस से कंसेप्ट रिव्यू के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी, नहीं कंसेप्चुअल एरर नहीं है बट एप्लीकेशन बहुत डिफिकल्ट आ गया, ये वाला एप्लीकेशन एग्जाम कंडीशन में नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी, एग्जाम कंडीशन में हो सकता था, कंसेप्चुअली भी ठीक हूं तो फिर क्यों नहीं किया, दैट इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई। सो एवरी नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन यू विल हैव टू आस्क 3 क्वेश्चन टू योरसेल्फ, जिसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है व्हाई आई हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। ओके, आगे चलो सर। मानसी, Mohit, you will have to read on a regular basis, take sectional test. Sectional test will help you a lot. आरती का क्वेश्चन आप आंसर कर दीजिए सर। ओके सर, आरती, आपने अभी मोहित का आंसर किया और आरती का उसके आसपास मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उसके जस्ट नीचे है आरती, मोहित यादव, आरती सिंगल। I feel that in quant I waste too much time and not able to reach 34th question. Okay, so I think now today's class will help you in that sense that you can make a target of 2 minutes और आप 2-3 minutes में वो analyze करोगे, and hopefully in the next MCAT you'll be able to solve, at least you can attempt all those questions that you can attempt in the MCAT. So maybe you can focus on that, right?
No. हर्षित, ओमेट्स के लिए आपको सेपरेट क्लासेस भी मिलेंगी और सेपरेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलता है, डोंट वरी अबाउट दैट। स्टिल हर्षित, इस वीक में आपकी ओमेट की क्लास लगी है एलआर की, आप वो भी अटेंड करना, उसमें भी फैकल्टी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है ना? ठीक है। एमकेट के बाद कितने टाइम एनालिसिस कर लेना चाहिए, मतलब वंस यू विल डू एनालिसिस फॉर वन एमकेट, बाद में तो क्वेश्चन क्लासिफाई हो गए, क्वेश्चन रॉन्ग और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड सिर्फ उन्हीं को करना है। डू आई हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन एमकेट? हाँ, बाद में तो ऑफ कोर्स सारे करने हैं, बाद में ना, बाद में सारे करने हैं। और राशिका, अभी आप, बस मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ, अभी जैसे आपने कब ज्वाइन किया आप ये देख लेना, पर वो टॉपिक बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्वांट में और डीआईएलआर में, जो टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं पढ़े, ठीक है? तो जो टॉपिक पढ़ लिए उन पे ये फोकस लगाना है आपको, राइट? उनके लिए यू कैन ऑलवेज से टॉपिक नॉट डन लिख सकते हो ब्रैकेट में, तो आपको खुद को लगेगा कि टॉपिक नॉट डन है। पूजा, पहले के कुछ क्लास मिस हो गए हैं क्वांट के, ओके। कब ज्वाइन किया था पूजा आपने, दैट इज इंपॉर्टेंट। और आज कल एक बैच चालू हुआ है 3 जून को 4:30 PM पे, इवनिंग 4:30 PM, तो आप उसका शेड्यूल चेक करके उसमें कुछ क्लास अटेंड कर लो। टॉक टू द पर्सन हु इज कोऑर्डिनेटिंग, आपके जो भी सेंटर मैनेजर है उनसे बात कर लो, ही विल हेल्प यू आउट। हर्षित, हर्षित तो बहुत वाइड क्वेरी है, कैसे प्रिपेयर करें? अच्छा, ओमेट्स के लिए बता दिया मैंने आपको, डोंट वरी, यू विल हैव सेपरेट क्लासेस फॉर दैट। Where to practice have completed, we have to start taking sectional test, Utkarsh. If my accuracy is 40 to 50%, it is not about how many passages I have to attempt. You have to attempt, अगर आप 3 पैसेज भी कर रहे हो तो आई एम हैप्पी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 3 पैसेज पे भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। How to improve RC? Okay. Take sectional test. ऑनलाइन लेक्चर्स पहले वेबिनार पे सेव होते थे, वो अभी भी होते हैं आपके होम पेज पर, उसपे हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, वो आपको ऑनलाइन वीडियो के फॉर्मेट में मिलते हैं, दे आर देयर, यू कैन वॉच देम। आकाश सर, आकाश का क्वेरी तो आकाश, हाँ आकाश, द सेम प्रॉब्लम वी वर डिस्कसिंग कि आपने एक सेट किया, आपको एक सेट करने के बाद वो कितने टाइम में हुआ था? अगर वो इनिशियल फेज में हो गया था तो आपको खुश रहकर थोड़ा ओवर अटेम्प्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। नाउ व्हाट वी हैव डन, रोज 2-3 4 क्वेश्चंस करते रहेंगे, आपने एनालाइज किया, आपको दिखा होगा क्या गलतियां आपकी, यू डोंट रिवाइज द सेम मिस्टेक्स अगेन, राइट? तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, आकाश। और अगर ये एक सेट लास्ट में जाके हुआ था, आई डोंट थिंक कि ऐसा हुआ होगा, तो वो होता ही है कि जब आप 1 या 2 सेट लगा लेते हो तो उसके बाद वो पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो इन दैट केस फील कूल, क्योंकि आप आई थिंक अगर आप एमकेट का रिजल्ट देखोगे तो शायद 18 मार्क्स कट ऑफ रहा है इसका, अगर मैंने सही पढ़ा तो 18 मार्क्स, दैट गिव्स यू अराउंड 6 क्वेश्चंस, मतलब यू आर वेरी क्लोज टू द कट ऑफ इन दैट केस, राइट? आपके 12 नंबर उस केस में आ गए और आप शायद एक सेट और लगा देते, यू वुड बी लाइक यू वुड हैव फार अहेड ऑफ द कट ऑफ, ठीक है ना? इन दैट केस तो आपको थोड़ा रियलाइज करना होगा कि बहुत ज्यादा करना नहीं होता है। वर्स्ट केस में भी अगर 2 से 3 सेट भी कर ले तो आप कट ऑफ जितना तो आराम से कर पाते हो इनिशियली, एंड देन यू कैन पिक अप विद द प्रैक्टिस, राइट? ओके रविंद्र, आपकी क्वेरी बहुत यूनिक है, ऐसा होता है, फ्लक्चुएशंस है, ऐसे ऐसे आएंगे। इनमें आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक चीज करनी है, आपको डिटेल्ड एनालिसिस करना है ऑफ ऑल रॉन्ग क्वेश्चंस वेयर यू स्कोर जस्ट 8 मार्क्स। वो एनालिसिस रॉन्ग क्वेश्चंस का वाई वही आपको आके लेके जाएगा। डीआईएलआर डेली प्रैक्टिस कैसे करनी है सर? सर डीएलआर डेली प्रैक्टिस तो ये जो क्लासेस वगैरह ऑब्वियसली आपने लिए वो उससे रिलेटेड जो बुक मटेरियल एसएम बुकलेट्स है, बहुत सारी डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हम प्लान करते रहेंगे, टाइम कर भी रहे हैं बहुत सारे बैचेस के लिए ऑब्वियसली, तो वो आप साथ साथ अटेंड करते रहेंगे। और 2-3 सेट्स, सी डोंट मेक ह्यूज टारगेट्स फॉर डीएलआर इन अ डे, ऐसा ना हो कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया और दूसरे 4 दिन पढ़ा ही नहीं। तो आप रोज 2-3 सेट्स का लगाइए और जो फर्स्ट एसएम बुकलेट है पहले वो फिनिश करिए, राइट? सर एक इसका डाउट लिया था आपने? मैंने लिया था, ऊपर से किसी का लिया था सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष का लिया था। हाँ, टाइम टेबल की क्लासेस लाइव है, ये सेव नहीं होती हैं। हाँ, नहीं ठीक होता, है श्रेय, आई विल ट्राई फॉर इट, आई कैन नॉट कमिट, आई कैन नॉट प्रॉमिस यू। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एलआरडीआई सर? कहाँ पे सर, कौन पूछ रहा है? अच्छा मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ? मानसी सर, थर्ड लास्ट पूछा है। What are the important topics of LRDA? See, the first book primarily is very important. Other than deductions,
See, when I am saying that something is not important, please, because it's a recorded thing, आप मेरे को पकड़ लोगे, don't feel, क्योंकि because cat is purely हाँ, मतलब कल को कपिल सर ही कहेंगे अरे यार तुमने तो उस दिन वो कहा था, पर फिर भी मैं बताऊं based on the experience of last 10 to 15 years, I can say it proudly कि deductions cat में बहुत नहीं आता, connectives पहली वाली बुक से नहीं आता, क्यूब्स का एक बार सेट आया है, ठीक है ना, और बाकी लगभग सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पहली बुक प्राइमरीली जो पहली की LR बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अबाउट डीआई के रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं. इट इज नॉट कि रीजनिंग बेस्ड डीआई ज्यादा आती है, जो भी क्वेश्चन डीआई का सरल नहीं है वो डीआई का आ सकता है. जो भी हमारी पहली वाली बुकलेट है वो सब कुछ वही बताती है, राइट. एंड देन सॉल्विंग ऑल एम कैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वो सारे 8, अच्छा आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कहाँ से वो सेट्स भी लगाएं. एम कैट में जो 8 सेट्स आते हैं वो भी प्रैक्टिस के लिए ही है. तो आप एक बार जब एम कैट लगा लें उसके बाद वो 8 के 8 सेट आपको कर जरूर लेने हैं. उसमें से 2-3 आपने एम कैट में किए होंगे रियल टाइम में, एंड बाकी बचे हुए ऑब्वियसली आप बाद में करेंगे. Okay, Divyanshu, start sectional test. That will help you. So I hope we would have answered all the queries. Okay. So again, I wish you a very best for your preparation. Please, please, please work hard. Please be consistent in your preparation. Perseverance से शिद्दत के साथ तैयारी करते रहो, निकल जाओगे. Believe me, शिद्दत के साथ तैयारी करोगे तो निकल जाओगे. Sir, all to you. Okay, and everyone, bye bye. Keep practicing, short notes बनाइए, पढ़ाई करिए बहुत सारी. Ultimately get yourself involved in CAT और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लीजिए, तमीज से पढ़ाई करते रहिए. Okay, and bye bye for this class, this session. I think we are done, sir. Bye bye. Sir, I'm leaving. Bye bye. Yeah, I'm leaving. Bye.